So we have seen significance of Sangam and Mahakumbh. Makar Sankranti is not just a celestial event, but a celebration of faith, unity and heritage. Pilgrims from across the globe have gathered here to take a holy dip, believed to cleanse the soul and grant liberation. Alongside the rituals, the Mahakumbh grounds are alive with cultural performances, spiritual discourses and the aroma of traditional delicacies like til gur and khichdi, adding to the festive spirit. Akhada, yes, we all are waiting for Naga sadhus. Akhada is a place of practice with facilities for boarding, lodging and training, both in the context of martial art or Sampradaya monastery for religious renunciates in Guru Shishya tradition. So we are witnessing some of the akhadas here and eagerly waiting for Naga sadhus to come. अलग अलग अखाड़ों का निश्चित क्रम होता है इस अमृत स्नान में और उसी क्रम के अनुसार अखाड़े पवित्र संगम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सनातन आस्था की महापर्व कुंभ में कोटिशः श्रद्धालु विशेष तिथियों और नक्षत्रों में पवित्र स्नान कर पुण्य अर्जन करने आते हैं। कहते हैं कि इन ज्योतिषीय कालगणनाओं पर अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल आदि समस्त 14 लोकों से देव, यक्ष, गंधर्वादि महापर्व में अमृत स्नान को पहुँचते हैं। कोई पक्षी रूप में आता है तो कोई नागा रूप में। नागा साधु जब देव प्रतिष्ठा संगम तट पर करते हैं तो संगम अपने अलौकिक आलोक से समस्त ब्रह्मांड को प्रदीप्त करने लगता है। सनातन धर्म ध्वजधारियों के साथ साथ यह महापर्व हमें हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त वेद, उपनिषद और योग के गूढ़ रहस्यों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें हमारी आत्मा और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा देता है। त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, और स्व को जानने का अवसर प्रदान करता है। योगों को प्रकृष्ट रूप से संपादित करने वाला तीर्थराज प्रयाग स्वयं में सृष्टि का आरंभ है, जो श्रद्धालुओं को तत्व बोध कराकर सत्कर्म में प्रवृत्त कर प्रगति पथ पर प्रदर्शित करता है। श्रुतिः प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयागः। शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। So you are watching live coverage of the Mahakumbh 2025 from the sacred city of Prayagraj on all the platforms of Doordarshan, especially our YouTube channel and OTT platform Waves. This grand spiritual gathering marks a celebration of devotion and heritage for millions of Hindus across the globe. However, this year holds a special significance as it heralds a historic step towards reclaiming our ancient Sanatan Dharma traditions. The Uttar Pradesh government, under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, has reinstated the ancient and authentic name of the first holy bath from Shahi Snan to Amrit Snan in a bid to honor the roots of Sanatan culture. For centuries, the term Shahi Snan has associated with the grand processions and rituals of the Kumbh. However, historically, this term emerged during the Mughal era and distorts the essence of the practice. Traditionally, these baths were referred to as Rajasi Snan or Amrit Snan,
emphasizing their divine and spiritual significance. The Mahakumbh is deeply rooted in the legend of the Samudra Manthan, where drops of the divine nectar or Amrit fell at 4 sacred locations including Prayagraj. The Amrit Snan symbolizes the purification of the soul, a connection to eternity and a path toward liberation. Responding to long-standing demands from saints and religious leaders, the Yogi government conducted a detailed study of historical texts and traditions. The decision to restore the term Amrit Snan reflects a profound commitment to preserving the sanctity of Sanatan Dharma. जहां तक नजर जा रही है वहां तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ये गंगा जी के मेहमान हैं, ये संगम के मेहमान हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जो सबसे पहले आज अमृत स्नान में संगम में डुबकी लगाएंगे। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की बात करें तो इस अखाड़े की स्थापना मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी सन 805 में हुई थी और इसकी स्थापना के स्थान को लेकर थोड़ा मतभेद जरूर है। कुछ विद्वान इस अखाड़े की स्थापना बिहार झारखंड के वैद्यनाथ धाम में बताते हैं, तो कुछ इसकी स्थापना हरिद्वार में नील धारा के पास मानते हैं। इनके इष्ट देव कपिल मुनि हैं और इस अखाड़े का प्रधान केंद्र यहीं यानी प्रयागराज में है। इसकी शाखाएं हरिद्वार, उज्जैन, उदयपुर, त्रयंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, नासिक, काशी और कनखल में है। तो सबसे पहले आज श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की तरफ से जो उनके महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, महंत हैं और उनके सभी लोग इसमें आज अमृत स्नान में डुबकी लगाएंगे। 1260 ईस्वी में महंत भगवानंद गिरी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर में आक्रमणकारी सेना को कब्जे से छुड़ाया था। 1857 तक इस अखाड़े के उन्नायक तत्कालीन राजनीतिक दांव पेचों में हाथ बटाते रहे हैं और 1857 की महान क्रांति में भी नाना साहेब पेशवा तथा महारानी लक्ष्मीबाई को सहयोग प्रदान कर इस अखाड़े ने अपने पराक्रम का अच्छा परिचय दिया था। तो यहां पर सबसे पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो अपने पूरे वैभव के साथ प्रवीण अमृत स्नान के लिए संगम की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो श्रद्धालुओं का हुजूम है इसमें उनकी गति थोड़ी मंथर होगी, लेकिन उसका भी अपना आकर्षण है। कल पैर रखने की जगह नहीं थी, आज तिल रखने की जगह नहीं है और ऐसा कई लोग कह रहे थे, वो देखने को भी मिल रहा है। आनंद, आपने जब अखाड़ों की बात की तो कई बार लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है या बहुत जानकारियां वो अखाड़ों को लेकर चाहते हैं, स्पेशली दी इंग्लिश स्पीकिंग व्यूअर्स। So let me tell them about the akhadas. There are 14 akhadas in India in which 13 are registered. These 13 akhadas are further divided as Nirvani, Digambar and Nirmal Sampradaya. So as we are discussing yesterday, it is also known as Sannyasi, Vairagi and Udasin Sampradaya or Shaiv, Vaishnav and Udasin. So different nomenclatures are there, but they all are very well known to people with the name of different akhadas, like you were talking about Panchayati Akhada. Nirvani Akhada, the Shaivites are followers of Lord Shiva, also known as Sannyasi. It has the largest number of akhadas as well as sadhus, saints and nagas. And Digambar, the Vaishnavites are follower of Lord Vishnu, also known as Vairagi. Nirmal, also known as Udasin, follower of multiple gods. So in Nirvani we have Shri Panchayati Akhada Mahanirvani, Shri Panch Atal Akhada, Shri Panchayati Akhada Niranjani, Taponidhi Shri Anand Akhada Panchayati, Shri Panch Dashnam Juna Akhada, Shri Panch Dashnam Avan Akhada, Shri Panch Dashnam Panchagni Akhada, and so is with Vairagi, Vaishnav Akhadas and Udasin Sampradaya. और ये सीधी तस्वीरें अरैल से हम देख रहे थे, जहां पर भी इस महाकुंभ का जश्न देखते ही बन रहा है। चर्चा अखाड़ों की चल रही है, तो अखाड़ों की शुरुआत
के बारे में बात आपने की। अखाड़ा शब्द का अर्थ ऐसे वीर नागाओं का संगठन जो हथियारों का प्रयोग करते थे। मुख्य रूप से प्राचीन काल में भारत के साधु संतों का एक ऐसा समूह होता था जो संकट के समय में राजधर्म के विरुद्ध परिस्थितियों में राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए कार्य करते थे। संकट के समय अखाड़े के साधु अपनी अस्त्र विद्या का भी प्रयोग करते थे। मान्यता है कि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए थे। उन्होंने 4 मठों श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ की स्थापना के साथ ही मठों और मंदिरों की संपत्ति लूटने वाले और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की शुरुआत की थी। शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और शस्त्र संचालन का अभ्यास करें। बाह्य आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने सुरक्षा कवच का काम किया था। कई बार स्थानीय राजा महाराजा विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धाओं की मदद भी लिया करते थे। और इतिहास के पन्ने पलटे तो हम ये पाते हैं कि औरंगजेब से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक को मात देने में नागा साधुओं ने, या यूं कहें कि नागा कमांडोज ने अहम भूमिका निभाई थी। आज महाकुंभ के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक नागा साधुओं के भी दर्शन होंगे, और जब वो इस अमृत स्नान में संगम में डुबकी लगाएंगे तो मान्यता यह है कि भगवान शंकर स्वयं नागा साधुओं के वेश में डुबकी लगाने आते हैं। कई कथाएं प्रचलित हैं और उन कथाओं में एक कथा यह भी है प्रवीण कि जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था तो ये नागा सन्यासी अपनी साधना में लीन थे, उन्हें पता ही नहीं चला, और भगवान शंकर उनके सबसे बड़े आराध्य हैं। जब उन्हें पता चला तो वो उस रास्ते पर जाकर रोने लगे, बिलखने लगे जिस रास्ते से महादेव माता पार्वती को लेकर वापस लौट रहे थे। कारण पूछने पर जब नागा सन्यासियों ने बताया कि हम आपकी तपस्या में इतने लीन थे कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि आपका विवाह हो रहा है, तो प्रभु